Good morning, students. We were talking about chapter 3rd, and our chapter 3rd is about election and representation. So till yet in this chapter what we have done, अभी तक हमने क्या पढ़ा? We have studied types of election, what election commission is, how does election commission works, universal adult franchisee. About all these we have discussed. Today we will be discussing about electoral reform in India. We will be talking about this term. First of all, we will be talking about the steps taken so far in respect of election reforms. क्या क्या वो important steps हैं जो कि लिए गए हैं अब तक electoral reform के procedure में. देखो, as we all know that India is a democratic country and free and fair elections are essential for a healthy democracy, because democracy and election they are एक दूसरे के पूरक हैं. वो जब जहाँ डेमोक्रेसी नहीं होगी वहाँ इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है, और जहाँ इलेक्शन नहीं होगा वहाँ डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है. द मोर द इलेक्शन आर फ्री एंड फेयर, द स्ट्रोंगर the elegy that people will have towards democratic institutions. जितने ज़्यादा हमारी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होंगे उतने ज़्यादा एलिगेशंस हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के लिए कम लगेंगे. नाउ टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस देयर आर मेनी स्टेप्स व्हिच हैव बीन टेकन. सबसे पहली है उसमें लोअरिंग द वोटिंग एज. क्या है? सबसे पहली है लोअरिंग द वोटिंग एज. कैसे? एक्शन अपॉन द डिमांड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड यंग जनरेशन, द पार्लियामेंट थ्रू 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 1989 minimum voting age reduced from 21 to 18. Now the parliament passed this act by mutual consent. Initially, in the beginning of our independence, the constitution had framed that universal adult franchisee will be basis on 21 years. मतलब 21 years से ज़्यादा जिसकी एज है वो जो है वो क्या करेगा? वोट दे सकता है. लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो निकल कर सामने आए और उन्होंने बोला कि नहीं 18 इयर्स इसको रखा जाए. सो वी हैव मेड एन अमेंडमेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन 1989 जो है वो बिल पास हो गया. हमारे 61st अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ, in that it is prescribed like from 21 the age has been reduced to 18 years. The second important reform which has been done is EVM. Second हुआ हमारा important EVM. EVM क्या है? EVM is electronic voting machine. Now initially in the beginning बड़े बड़े बैलेट पेपर्स बनाए जाते थे एंड वोटिंग वॉज बीइंग डन अकॉर्डिंग टू देम. सो दैट वॉज अ वेरी टीडियस प्रोसीजर. पीपल यूज टू put the stamp on the ballot paper, then they are being closed. Initially in the beginning boxes अलग अलग होते थे, जिसके बॉक्स में डालना है, जिसको वोट करना है उसके बॉक्स में वो बैलेट डालता था. फिर थोड़ा सा और रिफॉर्म हुआ. आफ्टरवर्ड्स अ सिंगल बैलेट पेपर come into existence with the different number of people who are contesting elections. So जिस particular को वोट देना था, the person will stamp in against of that name and he roll upon that ballot paper and put it in a box. फिर वो छटते थे, अलग होता था. So all that procedure was very much tedious. तो अब क्या होता है? The representation of the People Act 1951 was amended to facilitate use of electronic voting machine in India. Since I think now since from 20 years we are using EVM only.
थर्ड जो है दैट इज रिजर्वेशन या रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। रजिस्ट्रेशन, कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है? इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर देयर एग्जिस्टेंस। अब कब से शुरू हुआ ये? नाउ अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, the registration of the political parties had been made necessary. Now it also provides essential conditions for the registration such as faith in secularism and socialism, etc. Now Election Commission has the right for the registration for political parties कि भाई पहले क्या होता था 51 से पहले हम देखते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है दैट कैन केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड अकॉर्डिंगली they were working accordingly. अब उनके ऊपर क्या है, कोई दबाव नहीं था, लाइक they will work like that, कहीं रजिस्ट्रेशन जरूरी है, कोई भी अपना चुनाव चिन्ह बना दिया, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ रही थी। एंड टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स द एंटायर थिंग वाज बीइंग डन। फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई वो थी डेपुटेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का बनाया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था। अंडर द 1988 अमेंडमेंट एक्ट अ प्रोविजन हैड बीन मेड दैट द स्टाफ एंगेज फॉर द इलेक्शन और फॉर द प्रिपरेशन दे विल बी डिफरेंट। ये बना दिया गया कि दैट द स्टाफ विल बी डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है? The staff engaged for the preparation, revision and correction of electorals for election shall be on deputation of election commission. They will be serving not any political party, not anything else. They will be directly in control of election commission. This act provides that the personnel deployed for such a legal activity जो हैं वो उसी के होके रहे। दे आर सब्जेक्ट टू कंट्रोल एंड डिसिप्लिन ऑफ इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इनिशियली इन द बिगनिंग उनका डेपुटेशन पे वहाँ उनको भेजा जाता था, बाद में इलेक्शन कमीशन जो है ये एक स्वतंत्र बॉडी बन गया जो कि अपने हिसाब से काम करता था। फिफ्थ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट वो हुआ आइडेंटिटी कार्ड्स का, हमारे वोटर आईडी कार्ड का। On 15th December 1993, the Election Commission passed an order that from 1994, identity cards will be essential for voting. Now, this step was being taken to control false voting. झूठी जो वोटिंग हुआ करती थी, false poll जो हुआ करते थे, इनके अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए इसको बनाया गया। No one will be allowed to vote if he or she will not carry the identity card with them on the day of polling. For an example, anybody with my name could come to the polling station like yes, I am Nandini Yadav, daughter of Vinod Yadav, and I am being enrolled. Such my name and with my father's name and my address is already there in voting machine in that voting list, so anybody could come and vote. इससे ज़्यादा कोई आइडेंटिटी थी नहीं मेरी। अब इससे क्या होता था, फॉल्स पोलिंग बहुत ज़्यादा होती थी, कोई भी किसी का नाम से पहचान का वोट जो है वो कर जाता था, कर दो भैया। नाउ आफ्टर दैट टू कंट्रोल दिस फॉल्स पोलिंग दिस आईडी कार्ड प्रोविजन वाज बीइंग मेड। तो ये दीज वर द 5 इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स विच टुक प्लेस in the history of election commission or in the history of democratic India. अब what are the major recommendations from bringing about electoral reforms? अभी भी क्या recommendations रह गई हैं? The electoral system in India was based on universal adult franchisee, which has helped the voters not only in choosing their representative but also in facilitating smooth and peaceful change of governments, replacing one political party or a set of political parties by another. Our elections held so far have largely been free and fair. People have participated in the election process very actively.
Accordingly, election have been important part of our democratic life, and yet there are certain critical problems that have been adversely affecting not only the quality of electoral process but also the functioning of the entire democratic system. These definitely call for electoral reforms. See, abhi tak, initially from the beginning, when we were in freedom struggle only, from that time only, one thing was very clear in the mindset of our political leaders and the people of India. बिल्कुल क्लियर था विजन उनके दिमाग में कि हम लोग जो है वो क्या करेंगे, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही रखेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, when we were in freedom struggle, none of us was having any idea about what democracy is. आधे से ज़्यादा के सिर्फ 1% लोग भी नहीं थे हमारी कंट्री में जो ये चीज़ जानते थे कि भाई कैसे होगा, क्या होती है डेमोक्रेसी, कैसे काम करती है डेमोक्रेसी. ये नहीं पता होने के बावजूद दिस विजन वॉज वेरी क्लियर ऑफ ऑप्टिंग डेमोक्रेसी, क्योंकि ये चीज़ बहुत क्लियरली सबको पता थी कि डेमोक्रेसी जो है दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर गवर्नमेंट इज रूलिंग ओनली फॉर द बेटरमेंट ऑफ फॉर द पीपल. तो इनिशियली वी हैव स्टार्टेड, हमें आइडिया नहीं था, तो बहुत सारे जो लूप होल्स हैं, कमियां हैं, वो हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में शायद रह गई, जिनको कि हमें रिफॉर्म की जरूरत पड़ी. अब जो मेजर रिकमेंडेशंस हैं फ्रॉम ब्रिंगिंग अबाउट इन द इलेक्टोरल सिस्टम, वो क्या क्या है. नंबर 1, democratization of electoral system be made from time to time so as to keep the electoral system in pace with changing time. This was very clearly in the vision of people that time के साथ साथ change होना चाहिए सिस्टम में, ताकि से जैसे जैसे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती जाए हम उसे ऐड करते जाएं या सब्ट्रैक्ट करते जाएं. हम देखते हैं जैसे पहले बैलेट पेपर हमने बहुत ज़्यादा चेंज किए, उसके बाद हम ईवीएम पे आए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आए, हमको आईडी कार्ड्स की प्रॉब्लम महसूस होने लगी कि कोई आइडेंटिटी नहीं हो पा रही है, तो हम आइडेंटिटी कार्ड्स पे ऐसे टाइम टू टाइम जब भी ज़रूरत पड़े हमें चेंज की तरफ जाना चाहिए. सेकेंड जो है वो आया दैट चेंज फ्रॉम ऑनगोइंग सिस्टम, क्या था, प्लूरलिटी सिस्टम, टू सम फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम टू बी इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द वोटर सीट इम्बैलेंस. एक चीज़ और जो बार बार देखने को मिली कि हमारा जो FPTP सिस्टम हम लोगों ने ऑप्ट किया है वो क्या है, वो जनरली क्या था, उसमें क्लियर जो रिप्रेजेंटेशन है वो निकल के नहीं आता था, सीट्स का रिप्रेजेंटेशन जो है वो निकल के नहीं आता था. तो ये कोशिश की जाए, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं था, लेकिन ये कोशिश की जाए कि कैसे हम जो है वो PR सिस्टम की तरफ जाएं, जिसकी वजह से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन जो है वो सीट्स के अकॉर्डिंग लोगों को जो काम कर रहे हैं साथ में उनको मिल पाए, उन लोगों को मिल पाए. जो थर्ड जो इम्पोर्टेंट चेंज का जो सजेशन आया वो ये था that the functioning of political parties to be regulated in order to ensure that they function in a transparent and democratic manner. There is a need to audit their expenditure incongruent during system. देखो initially in the beginning जो इलेक्शन है पे फर्स्ट 2 जनरल इलेक्शंस छोड़ दो, क्योंकि इन फर्स्ट 2 जनरल इलेक्शंस कांग्रेस पार्टी वाज द फेस. क्यों था, उसके बहुत सारे रीजंस थे, क्लास 12 में बहुत डिटेल में एक चैप्टर है इसके बारे में, वो हम पढ़ेंगे. अभी हम सिर्फ इतना जान लें कि टाइम पर जितना एक्सपेंडिचर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इज डूइंग इन देयर इलेक्शन कैंपेन, उसकी बाकायदा ऑडिट की जानी चाहिए. ऑल दीज थिंग्स शुड गो अंडर द प्रोसीजर ऑफ ऑडिटिंग टू लेट द पीपल नो कि भाई वो कहाँ कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं, कैसे कैसे खर्च कर रहे हैं. फोर्थ जो रिकमेंडेशन निकल के आती है वो आती है इलेक्टोरल लॉज टू बी मेड मोर स्ट्रिक्ट एंड देयर मस्ट बी प्रोविजन फॉर हार्डर पनिशमेंट. कि जो
रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप कर दिए गए हैं। किसने सेटअप कर दिए? इलेक्शन कमीशन ने ड्यूरिंग द फेज ऑफ इलेक्शन। अगर कोई उन नियमों की पालना नहीं कर रहा है और इफ एनी सिटीजन और पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर इज नॉट फॉलोइंग ऑल दोज थिंग्स, तो उस पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। ऐसा नहीं है कि नहीं किया तो चलो कोई बात नहीं भैया, छोटा मोटा फाइन लगा दिया और काम चल गया। ऐसी ढिलाई की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वेरी सीवियर एक्शन मस्ट बी टेकन, मस्ट बी मेड अगेंस्ट देम। फिफ्थ जो रिकमेंडेशन आई वो आई, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन टू बी इंट्रोड्यूस सो एज टू रिड्यूस द कर्ब इलेक्शन एक्सपेंडिचर। की एक जो भी सब पॉलिटिकल पार्टी का लीडर इलेक्शन फाइट कर रहा है वहाँ क्या हो, एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है स्टेट उसको दे दे, फिक्स कर दे कि इतना इतना अमाउंट है, इसी में सारा तुमको जो अपना काम है वो करना है। इससे क्या हो, कुछ पार्टी फंड आएगा, कुछ जहाँ के एमएलए जो इलेक्शन लड़ रहे हैं जहाँ के लिए उनका फंड आएगा, तो ओवरऑल ठीक ठाक सा एक बैलेंस बन जाए, जिससे कि द पर्सन हु इज फाइटिंग इलेक्शन उसको भी प्रॉब्लम नहीं आए और बाकी लोगों को भी जो है वो किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट आता है लाइक स्पेशल प्रोविजंस टू बी मेड टू एंश्योर ऑफ एटलीस्ट 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ये रिकमेंडेशन अभी लागू हो गई है, लेकिन बहुत पहले से आ रही थी कि किसी भी तरह से इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि 1/3 जो रिप्रेजेंटेशन है वो वुमेन्स का हो। क्यों ऐसा था? इसके पीछे रीजन ये था कि जब तक वुमेन्स विल नॉट कम टू द मेन स्ट्रीम, तब तक हम जिस सो कॉल्ड इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं वो सो कॉल्ड इक्वालिटी हम नहीं दे पाएंगे। दूसरा, वुमेन्स आर ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी। जब तक उनका डेवलपमेंट सही फेज में नहीं होगा, राइट फेज में नहीं होगा, तब तक क्या होगा, हम सोसाइटी को सही डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है। और वुमेन्स का हर चीज़ को देखने का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, अपना एक अलग नज़रिया होता है। तो वो चीज़ों को किस तरह से देख रही हैं, क्या डिफरेंस के साथ देख रही हैं, ये जानना जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो निकल के आता है दैट द रोल ऑफ मनी एंड पावर, उसको शॉर्ट किया जाना चाहिए। लोग वोट दें पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा को, उनके विजन को, विजन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, उस बेस पे लोग वोट दें। मनी का जो इंटरफेरेंस है वो क्या हो, वो बहुत कम हो। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन निकल कर आती है वो निकल के आती है दैट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स टू बी स्टॉप्ड बाय इलेक्शन कमीशन। अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं, ये क्या बता रहा है हमको, द पीपल who are having criminal record, उनको कॉन्टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, नहीं इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा। वैर हम अपने चारों तरफ देखो, अभी तुम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हो, हर चीज़ पर तुम्हारी नज़र होनी चाहिए, अपने चारों तरफ देखो। क्या तुम्हें कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नज़र आती है जहाँ पर क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग तुम्हें नहीं मिलते? कम हुआ है, पिछले 5-7 साल से हम देखते हैं ये चीज़ कम हुई है, लेकिन ख़त्म अब भी नहीं हुई है। अब इसका रीज़न क्या है? अब इसका रीज़न ये है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है जब तक किसी एक पर्टिकुलर इंसान के अगेंस्ट प्रूव नहीं हो जाता कोई क्राइम, तब तक उसे क्रिमिनल नहीं कह सकते। और इतनी सारी लूप होल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को पता ही नहीं होती है। मैं तुम्हें एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ इसको बताती हूँ, शायद मैंने पहले भी बताया हो। हम यूआईटी में प्लॉट खरीदने जाते हैं, है ना भाई, हम सोचते भाई गवर्नमेंट का है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, ऑथराइज्ड है सब कुछ। भाई जब हम नल करेक्शन के लिए जाते हैं तो हमें पता चलता है भैया हमारे प्लॉट का कोई और भी मालिक है, बेचा नहीं है किसी को, लेकिन हमारे प्लॉट का मालिक कोई और है। अब हम बोलते हैं भाई यूआईटी को, भैया ये क्या धांधली है, हमें भी बेचा उसको भी बेचा। तो हमें पता चलता है कि जब ये जमीन एक्वायर हुई थी फ्रॉम सम फार्मर, एट दैट टाइम दिस प्लॉट वाज बीइंग सेल्ड
बाय दैट पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर ओनर को ये प्लॉट मिला था और उसने 2 को बेच दिया। अब भैया वेयर वी आर एट फॉल्ट, हम कहीं फॉल्ट पे नहीं है ना, हमने तो रजिस्ट्री कराई यूआईटी में, सब कुछ कराया, हमने केस ठोक दिया यूआईटी पे कि भैया हमारे साथ इन्होंने जो है वो फ्रॉडरी की है। अब क्या होता है, तब हमें पता चलता है व्हेनेवर वी आर बाइंग एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम यूआईटी, बाई करने से पहले हमको जाके यूआईटी ऑफिस में ये सारी चीज़ें पता करनी चाहिए कि इसके अगेंस्ट कुछ और फ्रॉडरी तो नहीं है, क्या ये फाइल सिर्फ हमारे नाम की है, क्या इस प्लॉट नंबर का अलॉटमेंट किसी और के नाम से कोई एप्लीकेशन आई है, नहीं आई है। लेकिन प्रैक्टिकली हम ये सब करते नहीं। तो यही चीज़ें छोटे छोटे प्लीज है जिनकी वजह से क्रिमिनल्स जो हैं ये इलेक्शन फाइट कर पाते हैं। फिर हम बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट जो स्टेप है वो हम देखते हैं कि कंप्लीट बैन हैज टू बी इम्पोज्ड ऑन द यूज ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस अपील्स इन कैंपेन। हम फिर से देखते हैं कि हर इलेक्शन में हम ये देखते हैं कास्ट के, अरे भैया मैं आपकी जाति का हूँ, आपको मुझे वोट करना चाहिए, मैं आपको अपने रिलीजन वाले के साथ चलना चाहिए। अब ये कौन भाई, लॉज बने हुए हैं, लॉज आर देयर, लेकिन इन्हें कौन फॉलो नहीं करता है, वी द कॉमन पीपल। सो एक चीज को समझो बहुत अच्छे से, ऑल द लॉज बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर बीइंग मेड फॉर आवर बेटरमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट बी क्लियर ऑन आवर विजन कि हम क्या कर रहे हैं। हम हर चीज के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, मोदी ये नहीं कर रहा, इंदिरा गांधी ने ये नहीं करा, राजीव गांधी ने ये नहीं किया। करंट एग्जाम्पल लो तो मोदी जी ने तो बोला था लोगों को भाई जो मजदूर है वो वहीं पे रहें और जो जिनके अंडर में भी ये काम कर रहे हैं इनको ये जो है वो मार्च महीने की और सैलरी दे, पूरी नहीं दे तो आधी दे, इनका सर्वाइवल चलता रहे। नहीं दी, कौन जिम्मेदार है इसका, क्या गवर्नमेंट जिम्मेदार है? नहीं, वी द पीपल, हम चोर हैं। सो इट इज टू मेक अप एवरीथिंग गुड इन कंट्री, वो खाली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी भी है। तो जब हम गवर्नमेंट पर कोई क्वेश्चन मार्क लगाएं तो सबसे पहले हम खुद से पूछे भैया हमें जो करना था क्या वो हमने किया? हमको किसी को बताना नहीं है उस आंसर को, हमको खुद ही आंसर देना है। सो पीपल मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट देयर विजन, क्योंकि जब ये चीज़ ठीक हो जाएगी तो आगे चल के बाकी चीज़ें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।